चुके हैं। सभी अतिथिगण, अभिभावकों से सभी निराशक साथ करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। सभी से निवेदन अपना अपना स्थान लें। Our benevolent teachers and beloved students, how lovely is this day! The scent in the air, beauty of this beautiful day as the event eventually starts blossom. Because as you know, our Universe Sanstha has been serving the nation from 1995. The founder and the promoters of Universe Sanstha are Shri Anup Shekhawat Sir, Shrimati Ritika Rathore Ma'am and Shrimati Pratishtha Shekhawat Ma'am. They are successfully running Universe Girls College since 2010. Along with Universe Public Senior Secondary CBSE School at Mudia Ramsar, Jaipur, and also Universe Public Senior Secondary RBSE School, Meenawala, and Universe Public Senior Secondary School, Khatipura. Today, we are here to inaugurate Shri Karni Universe College, Jaipur. The promoters of the college are Shri Anup Shekhawat Sir, Shrimati Ritika Rathore Ma'am, Dr. Vijay Singh Rathore Sir, and Dr. Kusum Rajawat Ma'am. Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom, for seeking the choicest blessings for the same. So now I would like to invite our admirable Hirananji Kataria Sir, Shri Rajyavardhan Singh Rathore Sir, Director Ma'am and Director Sir on stage. To kindle the lamp, I also invite all the dignitaries for the same. Muhurtam Shubhalagnam Shemam Kalyanam Arogyam Shubham Bhavatu Shivutane Varishtam Sarva Kalyan Muhurtem Parushakamarastam Shobhitam Modakene Aruna Pushpamalam Jalalambodaram Che Mamaridai Nivasam Sri Ganesham Namami Om Chandrama Manaso Jati Pastadevataye Namo Namah Kanak Kapita Jambo Phalacharu Bhakshanam Umastudam Shoka Vinashakarakam Namami Vigneshwara Pada Pankajam Sriman Mahaganadhipataye Namah Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala Ya Shubhra Vastrarvrata Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padamahasana Ya Brahma Ya Sri Swayam Sukratinam Bhavaneshwalakshmi Papatmanam Kritadhiyam Nata Isma Paripalaya Devi Vishwam Durge Smrata Harashi Bhiti Mashesha Jantu Swasthe Smrata Mati Mati Vashubhadanya Sarvopakara Karanaya Sadatra Cheta Sarva Badha Vinirmukto Dhanadhanya Sutanvite Manusho Mat Prasadena Bhavishyatena Sansaye Lambodara Shavikto Vignanasho Vinayaka Dhumrgheturagana Dhaksho Bhala Chandru Gajanane Dwadashatanamani Prajalapi Vidyadeva Lakshmi Pate Stengra Yogam Smarami Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanudare
तत्प्रस्त्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः श्री स्थान देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः Motivated people by being a living example by sharing your expertise and knowledge. Please come up on stage, sir. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कुसुम नाथावत मैम से। हमारे बीच पधारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत के लिए श्रीमान हीरानंद जी कटारिया, आप भी मंच पर पधारे। श्रीमान कुसुम मैम से निवेदन, कछावा मैम का स्वागत सत्कार। मंच पे कार्य हो रहा है, आपकी तरफ से तालियां नहीं है। डॉक्टर अमित जोशी सर, निवेदन करूंगा डॉक्टर विजय सिंह जी से पधारे अतिथियों का। श्रीमान अनूप शेखावत सर से डॉक्टर विजय सिंह जी से निवेदन, हमारे बीच पधारे अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा हमारे बीच पधार चुकी हैं, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कौशल प्रबंधक शिक्षा एवं राजनीति में भी आपकी बहुत अच्छी पर पधारे। पंचायत समिति सदस्य श्रीमान मदन जी भूरी से निवेदन, मंच पर पधारे। श्रीमान नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन, मंच पर पधारे। नेशनल नरेंद्र सिंह जी के साथ स्वागत करें और हमारे बीच मंचासीन अतिथियों के लिए दो पंक्तियां। 4 मिले 24 खिले, 20 मिले कर जोर, आप हमको ऐसे मिले जैसे नंद किशोर। भगवान श्री कृष्ण से हैं और अभी अवसर चल रहा है नवरात्रों का। सभी अतिथियों के रूप में शुद्ध के लिए युद्ध, मैं निवेदन करूंगा श्रीमती गीता पारेख, शुद्ध के लिए युद्ध को लेकर के अतिथियों को स्मृति चिन्ह स्वरूप यहीं पर विद्यालय में साइंस है और एग्रीकल्चर है, कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई गई हैं, वही सब्जियां आज अतिथियों को भेंट स्वरूप दी गई हैं। बिल्कुल किसी भी तरह का कोई कीटनाशक खाद बीज इनमें यूज नहीं किया गया है, देसी खाद यहीं बनाया गया है और उसी के उपयोग से यहाँ पर ये फसलें, ये सब्जियां उगाई गई हैं। जब भी अवकाश का समय होता है, हमारे डायरेक्टर्स सर मैम सदैव उसी क्यारी में उसी फसल को लेकर के, ऑर्गेनिक को लेकर के लगे रहते हैं और बच्चों को भी ये मैसेज कंटिन्यू कन्वे करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि आप भी अपने घर पर इसी तरह से छोटी छोटी क्यारियां और कम से कम घर में जरूरत आने वाली सब्जियां घर पर ही आप उगाएं, तैयार करें और उन्हीं का उपयोग करें। सभी को तहे दिल से तहे दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
और आज आप इस प्रांगण में आए, हार्दिक स्वागत करता है। देखिए, ये बहुत ही अनूठा सा एक जब हमने अपने टीम के साथ डिस्कशन किया तो सब लोग हंस रहे थे कि फूलों की मालाएं दी जाती है, बुके दिए जाता है, मैम सब्जी की टोकरी कौन देता है करके। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, स्कूल केवल किताबें ही नहीं पढ़ा रहा, स्कूल केवल साइंस की एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, क्लब्स, बुलबुल, एनसीसी, ये सारी एक्टिविटीज तो करा ही रहा था। पर इस कोविड के टाइम में हम सब ने महसूस किया कि किस तरीके से जो है जीवन के जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो दैनिक जीवन के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत वैल्यू करती है हेल्थ को लेकर के। और हेल्थ की जहाँ बात करें तो खान पान के बिना हेल्थ संभव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक शुद्ध का युद्ध छेड़ा गया और इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के हमारे टीचर्स और स्पेशली हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एक ऐसा नाम जिसे लेने में गर्व का अनुभव होता है, एक ऐसा नाम जिसने ना केवल पहचान कराई जयपुर की, राजस्थान की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, दुनिया में नाम बनाया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में आए और उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई जिसका निर्वहन शिद्दत के साथ उन्होंने किया। राजनीति, पॉलिटिक्स लोगों के दिमाग में किसी अलग तरह से हो सकती है, पर उसका स्वरूप कैसे कर्नल सेना का डिसिप्लिन के साथ, शिद्दत के साथ सुबह से लेकर रात तक एक रूटीन, एक शेड्यूल के साथ निभाता है, ये हमने देखा राज्यवर्धन सिंह सर में। हमारी प्रेरणा है आज यूनिवर्स कॉलेज के उद्घाटन समारोह में उनकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य है, प्रेरणा स्रोत है। कब कौन बच्चा नरेंद्र से विवेकानंद बन जाए और कब कौन बच्चा मोहन से महात्मा बन जाए, ये यात्रा पता नहीं चलती। मैं लंबा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। हमारे बीच इसी मिट्टी से निकला एक लाल और पहचान बनाई भाई हीरानंद, मेरा क्लासमेट रहा हुआ है इसलिए भाई हीरानंद बोल रहा हूं, मेरा दोस्त है, मुझे इस बात के लिए गर्व है। पहचान खुद की बनाई और साथ ही साथ खुद से 2 फीट ऊपर बेटे को लेकर गए, सींचा, सिखाया कल्चर, और आज वो इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। लम्बित कटारिया मेरे साथ में बैठे हैं। अचानक मैंने अगर सच कहूं तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में से कोई इतना व्यस्त व्यक्ति कैसे बिना बताए, बिना बुलाए आ सकते हैं। श्री संजीव हुड्डा सर, आप लोग परिचित ठीक से नहीं होंगे, हम एक मिशन से जुड़े हैं, एक क्रांतिकारी मिशन, केमिकल फ्री यूनिवर्स। अभी मोदी जी गए थे कुछ समय पहले विदेश में और वहां कहा कि 2050 तक हम केमिकल फ्री बनाएंगे हिंदुस्तान को। लेकिन केमिकल फ्री मिशन यूनिवर्स का सपना जिन्होंने संजोया, बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से वो हमारे बीच यहाँ आए। मैं संजीव हुड्डा सर का तहे दिल से आभारी हूं और उनके लिए जोरदार तालियां चाहता हूं। मेरे बड़े भाई कुबेर सिंह जी, हमेशा उनकी गाइडेंस मेरे को रहती है। संजीव पंत सर, आशुतोष पंत सर, संजीव पंत इनका छोटा भाई है, वो मेरा दोस्त है इसलिए बार बार उसका नाम आ जाता है। आशुतोष पंत सर हमारे बीच में है, मैम कछावा हमारे बीच है, रितु सिंह जी, मैं किन किन का नाम लूंगा तो थोड़ा ऐसा रह जाएगा। मेरे लिए सारे आदरणीय है और आप सबकी आज यहाँ पे उपस्थिति हमें बहुत गौरवान्वित कर रही है, हमें ताकत प्रदान कर रही है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर साथ में रहेंगे उनके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर विजय सिंह राठौर, जो अपने आप में इंटेलेक्चुअल है, वो एमएससी भी है, एमसीए भी है, एमटेक भी है और डॉक्टरेट किया उन्होंने मेडिकल कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो एक बहुत ही सदे हुए हाथों में यहाँ पर लोग हमारे बीच है। शिक्षा जगत से जुड़ी बहन रमा चोपड़ा, इस पद तक देखिए कब कौन कहाँ कैसे पहुंचता है मायने रखता है। तो रमा चोपड़ा मैम हमारे बीच यहाँ पर है, उनके लिए भी मैं बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा। और सभी सम्मानित अतिथिगण,
सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं और आपके व्यस्त समय से आप यहां पर आए, हम दिल से उनके आभारी हैं। मैं गानों का बड़ा शौकीन रहता हूं और मैं 2 शब्द शेयर किए बिना मुझसे रुका नहीं जाता कि हम अच्छे डॉक्टर बन पाए या ना बन पाए, इंजीनियर बन पाए या ना बन पाए, हम एक अच्छे नागरिक इंसान बन जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारतीयों की पहचान और हमारी सनातन संस्कृति, मैं नववर्ष की शुभकामनाएं भी आपको देना चाहूंगा। एक गाना मुझे बहुत प्रेरित करता होता है, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ की रीत ही प्रीत है। इस प्रीत ने पहचान दिलाई हमारी सनातन संस्कृति की दुनिया में और हम सौभाग्यशाली हैं। मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं जुड़ा और राज्यवर्धन सिंह जी यहाँ पर बैठे इसलिए नहीं बोल रहा, मेरा जर्रा जर्रा और रोम रोम कहना चाहता है कि हमारे देश को एक ऐसा जबरदस्त प्रधानमंत्री मिला जो चाय का काम करते हुए उस मुकाम तक पहुंचे और इस देश की मिट्टी का नाम दुनिया में रोशन किया। पुरातन संस्कृति और हमारी जो गुरु की जो पहचान थी, उस पहचान को पुनर्स्थापित करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और उनकी टीम में इस तरह के साथी हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं लंबा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, सभी का समय इंपॉर्टेंट है, तो समय की सीमितता को देखते हुए मैं फिर से राज्यवर्धन सिंह साहब का बहुत आभारी हूं। उन्होंने इतना समय दिया, तो कार्यक्रम को थोड़ा स्पीड से लेंगे ताकि वो पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सके और उनके उद्बोधन और विचारों से हम सब लोग प्रेरित हो सके, फायदा ले सके। आप सबका पुनः बहुत बहुत दिल से आभार। मैडम रितिका राठौर और कुसुम राजावत का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, उनका दिल से आभार। बड़ी मेहनत और तपस्या से उन्होंने चीजों को क्रिएट किया है। मैम जोधा की टीम और स्वाति मैम की टीम ने कुछ तैयारियां की है, मैं उनके लिए अग्रिम बधाई देता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे वो कार्यक्रम। जरूर आप देखें और एंजॉय करें। धन्यवाद। Auspicious festival of Rajasthan. Girls and married women celebrate this festival in ceremonial spirit. The rituals begin from very first day and all over the 16 days festivities spread a tremendous spectrum of joy and happiness everywhere. So for more details, I would like to welcome Anjali Best on stage. आज इस कार्यक्रम में विराजमान सभी मुख्य अतिथिगण, निदेशक महोदय, महोदया, आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ मौजूद सभी सहपाठियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जिसका कण कण वीरता की पहचान है, जिसका कण कण वीरता की पहचान है, वह प्राणों से भी प्यारा मेरा राजस्थान है। इस राजस्थान की मरुभूमि पर जहाँ अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, वहीं गणगौर जैसा पावन पर्व भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब जब हवाओं पर बसंत का मौसम राज कर रहा है, तब राजस्थान में इस बसंत ऋतु पर रंगोत्सव होली का रंग चहुओर छाया हुआ है। बसंत के आगमन की खुशी में जहां उदयपुर में मेवाड़ उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं हमारे जयपुर में देवी पार्वती को समर्पित गणगौर उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणगौर पूजा प्रेम एवं पारिवारिक सौहार्द का प्रतीक माना गया है। ये त्योहार होली के दूसरे दिन से ही आरंभ हो जाता है। 16 दिनों तक बड़े उल्लास और खुशी के साथ गणगौर की पूजा की जाती है। चारों तरफ वातावरण में खुशी और गणगौर की लहर सी छा जाती है। कुंवारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं मिट्टी के भगवान शिव यानी गण और मिट्टी की माता पार्वती यानी गौर बनाती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ उनकी पूजा अर्चना करती हैं। सुहागिन स्त्रियां जहां परदेश गए अपने भरतार को वापस आने की मनुहार करती हैं, वहीं उन्हें परदेश जाने से रोकती भी है और उनसे साज श्रृंगार के चीजों की मांग करती है।
सुबह सवेरे कुंवारी लड़कियां गीत गाती हुई बगीचों से दूब व जल लाकर इसर गणगौर का स्नान व उनका श्रृंगार कराती हैं। शीतला अष्टमी के दिन पूरे पारंपरिक रूप से इसर गणगौर को घर लाया जाता है और दुगने उत्साह से शुरू हो जाता है गीतों, बिंदोरों और गुडलों का दौर। आज इस घर तो कल उस घर। 16 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ गणगौर उत्सव मनाया जाता है। फिर गणगौर की विदाई की प्रथा निभाई जाती है। गणगौर की विदाई बेटी की विदाई का सदृश्य उपस्थित करती है। जिस प्रकार बेटी की विदाई उदास मन पर पूरे धूमधाम से की जाती है, उसी प्रकार गणगौर की विदाई पर हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेले आयोजित किए जाते हैं। सुंदर झांकियां व लोक कलाकारों की मनोरम प्रस्तुतियों के साथ सिटी पैलेस से गणगौर की झांकी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और गौर के दर्शन के साथ वह हमारी गुलाबी शहर के दर्शनीय स्थलों को भी देख कर जाते हैं। इसी गणगौर की विधिवत पूजा व मेले की झलक प्रस्तुत करने आ रहे हैं यूनिवर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीनावाला के छात्र छात्राएं। तो आइए देखते हैं उनकी अनूठी प्रस्तुति।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति रंगीलो राजस्थान और गणगौर किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इन बालकों ने सचित्र आपके सम्मुख अलाइव प्रस्तुत किया। राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, हमारे सांसद और हमारे सम्माननीय रमा चोपड़ा मैडम, आशुतोष पंत सर, संजीव हुडा जी, कटारिया सर और जो बाकी भी लोग पधारने वाले हैं, राजेंद्र सिंह जी हुडा साहब, हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं राजस्थान के, हरीश यादव जी, आशु सिंह सुरपुरा जी और कई गणमान्य व्यक्ति, और उन सबके साथ में जो आप सबने यहाँ पे आकर के एक हम सबको हौसला अफजाई के लिए हमको एक मौका दिया है। देखिए, मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मैंने पीएचडी किया कंप्यूटर साइंस में
और भाग्य से करनी माँ के आशीर्वाद से राजस्थान विश्वविद्यालय की जो पहली पीएचडी मिली कंप्यूटर साइंस की, वो मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं हमेशा कंप्यूटर की भाषा में बात करता हूँ कि कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो वो है जिससे कि कंप्यूटर पूरा बनता है, और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज़ और है जिसके बिना कंप्यूटर ऑन भी नहीं होता, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऊर्जा नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी फेल है। ये जो कॉलेज की बिल्डिंग है ये हार्डवेयर है। हम लोग जो मेहनत करेंगे, मैं, अनूप सिंह जी, रितिका मैडम, कुसुम मैडम और बाकी हमारा पूरा जो स्टाफ है, हम उनको स्टार्स बोलते हैं, स्टाफ नहीं बोलते। हम कहते हैं करनी यूनिवर्स स्टार्स, क्योंकि यूनिवर्स में वैसे स्टार्स होते हैं, स्टाफ नहीं होते। तो हम सभी लोग, ये बिल्डिंग हार्डवेयर हो गई, हम सभी लोग सॉफ्टवेयर हो गए। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा है, जिसके बिना ये कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, वो आप सब लोग हैं। और जब आप लोग यहाँ पे आए हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी आपने हमको दी है, जो ऊर्जा आपने हमको दी है, तो इस मेहनत के साथ, इस हिम्मत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो इनोग्रेशन हम इस करनी यूनिवर्स कॉलेज का कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में, ये इसी विजन को लेके कर रहे हैं हम लोग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हमको गाइडेंस दिया, उस NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन तो अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर UGC भी लगी हुई है, AICTE भी लगी हुई है, और अलग अलग बॉडीज अपने अपने हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो उस NEP का एक क्रक्स निकाला हमारे अल्प ज्ञान के हिसाब से, उस क्रक्स में 3 बातें आती हैं: सोशली रिस्पॉन्सिबल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड ग्लोबल रेडी सिटीजन्स को तैयार करना। यानी कि हम एजुकेशन के थ्रू ऐसे सिटीजन्स को तैयार करें जो न केवल अपना भविष्य बनाने में ध्यान दें, जो न केवल अपना पैसा कमाने में ध्यान दें। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, ये पूरा कल्चर जो राजस्थान का था उसको 5 मिनट के अंदर दिखाया गया है। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल अगर हमारा स्टूडेंट होगा तो वो आगे जाकर के चाहे पैसा कितना ही कमा ले, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, चाहे कितना बड़ा बिजनेस कर ले, वो उसको ढंग से स्टेब्लिश करने में सक्षम हो पाएगा। और सोशली रिस्पॉन्सिबल अगर होगा तो समाज को वापस भी दे पाएगा। और हम भी उसी श्रृंखला में हैं। हम भी MCA किया, MTech किया, कंप्यूटर साइंस में PhD करी, और हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज थी कि अगर हम चाहते तो राजस्थान के बाहर या इंडिया के बाहर भी हमको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। बट हमने कहा नहीं, जब जयपुर से हम निकले हैं, राजस्थान से हम निकले हैं, जिस समाज से हम निकले हैं, उस समाज को वापस दें। तो बजाय कि हम बाहर जाने के, चाहे अनूप शेखावत जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारी पूरी टीम हो, हम लोगों ने निर्णय यही लिया। और ये जो श्री करनी कॉलेज है उसका मैं थोड़ा परिचय दूं आपको। करनी कॉलेज 2008 में स्टेब्लिश हुआ था और वैशाली नगर में करनी पैलेस कैंपस में पहले चलता था। फिर 2018-19 में कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण उसको हमको वाइंड अप करना पड़ गया। इधर जो यूनिवर्स गर्ल्स कॉलेज है वो PG के कोर्सेज चला रहा है ऑलरेडी। इसमें BA और MA कोर्सेज ऑलरेडी 2010 से चल रहे हैं। इस साल हमने और अनूप सिंह शेखावत जी ने मिलकर के टाई अप किया और करनी कॉलेज को और इस यूनिवर्स गर्ल्स कॉलेज को हमने मर्ज किया, और अब इसका नया नाम आज से है श्री करनी यूनिवर्स कॉलेज। और इस श्री करनी यूनिवर्स कॉलेज में जो पहले से BA MA कोर्सेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। इस साल हमने क्या किया, इसमें BA MA के अलावा BSc, BBA, BCA और BCom कोर्सेज की शुरुआत किया है। और जो गर्ल्स कॉलेज था उसको हमने कोएड कॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो इसी में आप सभी का अगर आशीर्वाद मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हमारी कोशिश है सोशली रिस्पॉन्सिबल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड ग्लोबल रेडी सिटीजन्स जो NEP 2020 में कोशिश की गई है इंप्लीमेंट करने की, उसको हम भी एक कुछ साथ दे सकें। और माना कि ये कॉलेज मुंडियारामसर में है, लेकिन ये कॉलेज सिर्फ मुंडियारामसर के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ जयपुर के बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए नहीं है। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे आकर्षित करेंगे, यहाँ फैसिलिटीज डेवलप करेंगे जिसमें ये क्वालिटी एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर सके, और इसमें कोशिश हमारी पूरी रहेगी। तो और दूसरी चीज जो हमारे साथ आपने देखा होगा, हमारे सोच से सफलता तक आपके साथ, क्योंकि हर स्टूडेंट की, हर पेरेंट्स की, सबकी एक सोच होती है कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, और बच्चे की सोच होती है कि मैं भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकूं। और उस सोच को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे संघर्ष भी आता है और बहुत सारी आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तो वो जो संघर्ष और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसमें करनी यूनिवर्स कॉलेज सदैव आपके साथ रहेगा। न केवल 3 साल की स्टडी, 3 साल की स्टडी के बाद में जो एलुमनाइज हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी हम हेल्प लेते भी हैं, उनकी हेल्प करते भी हैं। और सफलता की जो भी आपकी डेफिनेशन है, सफलता हमेशा कहते हैं कि एक सफलता इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सफलता इज ए प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में जो डिफरेंट आपके माइलस्टोन्स आएंगे, उन सभी माइलस्टोन्स में श्री करनी यूनिवर्स कॉलेज आपका जिस हद तक हेल्प कर सकता है उस हद तक आपके साथ रहेगा हमेशा।
तो सोच से सफलता तक आपके साथ श्री करनी कॉलेज है और ये आगे भी रहेगा। और तीसरी बात, मुझे पता है समय बहुत कम है और वैसे कॉलेज के बारे में सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में, ब्रोशर्स में वगैरह में आपको मिल जाएगी। अभी हम रेडियो, टीवी और जो एडवर्टीजमेंट के साधन है सारे, वो सब हम लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस गाँव का भी इतिहास है। अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, करणी माता का एक मंदिर था एक दूसरे गाँव में, और वहाँ पे उनको करणी माता को कुछ ऐसा लगा कि भाई मुझे इस मुंडियाराम से गाँव में आना चाहिए। तो करणी माता का इस कॉलेज के भी आने के पहले ऑलरेडी यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे करणी माता आ चुकी हैं और वहाँ पे उनका एक मंदिर भी है। और सिमिलरली एक संयोगवश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये करणी कॉलेज भी पहले वैशाली नगर में था और वहाँ से कोई करणी माता की सोच थी या करणी माता का कोई आशीर्वाद है, करणी माता की प्लानिंग होगी कि उस कॉलेज को यहाँ पे लेकर के आएंगे और इसको करणी यूनिवर्स कॉलेज किया गया। और मैं जब थोड़ा सा इसको करणी माता के या जो भी इतिहास है बीकानेर का या देशनोक का, उससे जब थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो करणी माता का अगर आपको कुछ किसी को उतना पता है तो इनका स्वाप में जन्म स्थल है और साठीगांव में इनका ससुराल था। और फिर वहां से जब वो निकले तो जांगलू प्रदेश में आए थे और जांगलू प्रदेश में आकर के, कहानी बहुत लंबी है, हिरमल जी थे, बीका जी थे, जोधा जी थे, बट कहानी ये है कि वो जो बीकानेर और जोधपुर है उनकी स्थापना करणी माता के हाथ से हुई है। तो अब जब करणी माता यहाँ पे आई है तो मुंडियाराम सर में न केवल एक कॉलेज की बात नहीं है। अब देखिए, जैसे हमने कॉलेज की शुरुआत की 1 महीने पहले, हमारे कॉलेज के सामने ही एक टाउनशिप डेवलप होना चालू हो गई। इधर हमने कॉलेज की फाइल लगाई, वहीं एक ऐसी जबरदस्त कॉलोनी आ रही जेडी अप्रूव, जो कि बहुत ही अच्छा शायद लोगों को रहने के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह बना के देंगे। और ऐसे ही अलग अलग डेवलपमेंट चीजें चालू होगी सारी। तो जैसे करणी माता का कहते हैं कि यहाँ पे कदम पड़े माता जी के कदम पड़ते हैं, कॉलेज भी खुल गया, स्कूल्स भी डेवलप हो गए, टाउनशिप भी आ रही है। और आने वाले जो समय है 4-5 साल का, हम देख पा रहे हैं हमारा विजन जो हमको लगता है कि भाई कई चीजें इस गांव के अंदर होगी और ये गांव शायद जयपुर का नहीं, राजस्थान का भी आने वाले समय में एक क्या कहते हैं स्टैम्प बन के आएगा सामने। तो भावनाएं बहुत सारी हमारी, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अभी समय तो कम है। राज्यवर्धन सर का भी हमको सुनना है और बाकी गेस्ट का भी सुनना है। बस सिर्फ मैं आप सभी से यही धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से कि हमें पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो बातें कर रहे हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ग्लोबल रेडी सिटीजन्स को बनाने की, वो इतना आसान तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को बहुत कुछ हमको मैनेज भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ऊर्जा हमको मिलती रहेगी आप लोगों के आशीर्वाद के रूप में। आप में से कई लोग शायद जयपुर से, अहमदाबाद से आए हैं, अमित जोशी जी, और कुछ लोग जयपुर से बाहर आए हैं, कुछ लोग यहाँ जयपुर से आए लेकिन बहुत दूर दूर से आए हैं। तो आप लोगों ने अगर इतनी तकलीफ हमारे लिए उठाई है तो हम आपके लिए बिल्कुल मन से धन्यवाद दें कि आपने जो ऊर्जा हमको दी, आज इनोवेशन के दिन जो हिम्मत आपने हम लोगों को दी है, उस हिम्मत को हम बिल्कुल एक तरह से सब कुछ सपने और जो हम दिखा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनको सच करने की कोशिश करेंगे और सच करके दिखाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गेस्ट को भी धन्यवाद और स्पेशल धन्यवाद राज्यवर्धन सर को, क्योंकि जब आपने यस बोला ना तब हमको मोटिवेशन मिला। हम लोग कोशिश तो कर रहे थे, बस सर का जैसे यस आया हमारे पास तो मोटिवेशन मिला और हम इतना बड़ा प्रोग्राम करने में सक्षम हो पाए। और रमा चोपड़ा मैडम जब इन्होंने साथ में हमको तुरंत यस बोला, आपके गुड़ा साहब, महेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब ने यस बोला, तो उससे हमको बड़ा हिम्मत लगी। और फिर उस हिम्मत के साथ जब हम आप लोगों के पास गए, सबके पास, मुंडियाराम सर ने सबको इन्वाइट किया, आसपास के गाँव को इन्वाइट किया, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, मेरे जो स्कूल के दोस्त थे उनको इन्वाइट किया, कॉलेज के दोस्त उनको इन्वाइट किया, अनूप जी ने इन्वाइट किया, और सभी लोग दूर दूर से यहाँ पे आए। और एक ने तो कहा भी क्या हमारे आने नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा आपको नहीं पता क्या फर्क पड़ता है, आप क्या करके और आप क्या करके बैठने से क्या जो ऊर्जा आपको मिलेगी ना, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप तो पूरे इंसान जो आए हैं और आपने हमको आशीर्वाद दिया, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अधिक जानकारी आपके समक्ष रखी और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग सदैव महाविद्यालय और यूनिवर्स संस्थान को मिलता रहेगा। इसी कड़ी में मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के आ रही हैं महाविद्यालय की छात्राएं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के लिए। मरुरंग युगल नृत्य के लिए कुमकुम एंड पार्टी। गोरी गोरी गज बड़ बड़ी ठड़ी मुझ रुमान ले कमा
केवल सांस्कृतिक प्रोग्राम में ही नहीं, अभी अंतर विश्वविद्यालयी नेटबॉल प्रतियोगिता में 4 छात्राओं ने प्रतिनिधित्व किया है। महाविद्यालय राजस्थान अनुष्का शर्मा, प्रियंका चौधरी आदि गर्ल्स ने नेतृत्व किया है राजस्थान विश्वविद्यालय का। और निश्चित रूप से सफलतम खिलाड़ी, सैन्य अधिकारी, कुशल कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और साथ ही हमारे बीच पधार चुके हैं आज के कार्यक्रम के अतिथिगण श्रीमान राजेंद्र, पंचायत राज मंत्री ग्रामीण विकास हमारे बीच पधार चुके हैं। फाउंडर डायरेक्टर श्रीमान अनुजय सिंह जी से निवेदन माल्यार्पण कर स्वागत करें। हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। और निवेदन करूंगा कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही डॉक्टर रितिका मैम से कि वो शुद्ध के युद्ध यही महाविद्यालय में उपजाई हुई सब्जियां सर को स्मृति स्वरूप भेंट करें। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कार्यक्रम में आकर आपके सबके सामने आपसे बात करने का ये अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को जब मैं देख रहा था तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि कितनी दिक्कत होगी। एक स्कूल शुरू करा, कॉलेज शुरू करा, विद्यार्थियों को कॉलेज तक लाना, बच्चियों को, उनके माता पिता को समझाना कि शिक्षा कितनी जरूरी है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक चुनौती है। लेकिन जब नाम अनूप हो, अनूप का मतलब होता है अनपैरेलल, अनइक्वल। जब नाम अनूप हो तो सब कुछ संभव होता है। फिर उसके साथ विजय अगर साथ में हो जाए तो फिर शक्ति ही शक्ति है, जीत है। और इनकी पत्नी का नाम रितिका, वो सत्य है। तो इन सब का जब एक मिलाप होता है तो सब सारा असंभव संभव हो जाता है। इसलिए मैं इस टीम को, जिसमें कुसुम भी शामिल है, आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक हम सब के लिए सबक भी है। एक अकेले व्यक्ति से हर चीज संभव नहीं होती, लेकिन अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं, एक अच्छी टीम बना लेते हैं तो बहुत कुछ संभव हो जाता है। आप देश में, विदेश में, कहीं पर भी देख लीजिए, जो कोई सफल हुआ है, जो कोई प्रयोग सफल हुआ है, व्यक्ति सफल हुआ है, वो अकेले की हिम्मत या ताकत से नहीं, दिखने वाले या न दिखने वाले, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन या बिहाइंड द स्क्रीन बहुत से लोग होते हैं जिनका आशीर्वाद भी होता है और मदद भी होता है, तभी संभव हो पाते हैं। अब इस टीम के मित्र देखिए, इस टीम के मित्र बुद्धिजीवी लोग हैं। आशुतोष पंत जी यहाँ बैठे हुए हैं, खिलाड़ियों में हैं हीरानंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी यहाँ मौजूद हैं, समाज के सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं रितिका जी से पूछ रहा था कि मंच के इस तरफ कौन कौन बैठे हैं, उन्होंने मुझे परिचय दिया। बहुत से लोग हैं, आप सबका आशीर्वाद न केवल आज, बहुत लंबे समय से इस परिवार के साथ रहा, इस टीम के साथ रहा, तब ये जाकर सफल हुए, तब ये जाकर आज जो कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है इस सफलता तक पहुंचने के लिए आप सबका इसमें योगदान है। इसलिए इस कॉलेज के उद्घाटन के दिवस पर मैं आप सबको, माता पिता, टीचर, स्टाफ की पूरी टीम, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों ने यहाँ पे बहुत शानदार कार्यक्रम करा, खुद ही ने तैयारी करी। जब मंच पर आते हैं तो हिम्मत चाहिए होती है। मुझसे पूछिए, कभी मंच पर नहीं चढ़ता था। स्कूल में मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि किसी तो कार्यक्रम में जाओ जहाँ मंच पे करना ना, पीछे बैठे रहना। लेकिन समय का ऐसा
समय ऐसा आया कि मंच पर चढ़ना ही पड़ा, मना नहीं कर सकते। लेकिन आज जो बच्चे यहाँ मंच पर आए, उनमें एक हिम्मत है, साहस है, एक विश्वास है। जो इस प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे हैं, एक विश्वास है, आत्मविश्वास है, ये प्रैक्टिस है। और जीवन के अंदर हम गलतियां करते रहे, गलतियों से कभी नहीं डरना चाहिए, फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए। या जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, माता पिता के लिए नहीं बोल रहा, आपसे से तो हम सीखते हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, गलतियों से कभी नहीं घबराना चाहिए, फेलियर से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर फेलियर से आप डरोगे तो आप शुरुआत ही नहीं करोगे, और शुरुआत नहीं होगी तो आपका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हारने के लिए तैयार रहिए। मैं तो कहता हूं किसी कंपटीशन में जाओ तो छाती ठोक के बोलो कि मैं हारने को तैयार हूं, लेकिन मुकाबला पूरा करूंगा। इस भावना से वहां पर एक दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा के ऊपर एक शानदार चर्चा करी, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बातें रखी। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने सुना, मैंने उसको सुना इस बार भी, और हर बार जब वो करते हैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, कुछ एक ऐसी चीजें बताते हैं कि अचंभा होता है कि इतनी गहराई तक इस व्यक्ति को पता है, इतनी गहराई तक जब पूरे देश को संभालना है इस पूरी दुनिया के अंदर, उसमें भी समय निकालकर इतनी प्रैक्टिकल चीजें बता सकते हैं। एक बात उन्होंने जो कल बताई, इम्तिहान से हम सबको डर लगता है, हर व्यक्ति को। जैसे मैं आपको बोलूं आपका टेस्ट शुरू है, तो आप सोचेंगे मुझे पता नहीं क्या देख रहा है, मैं कैसे बैठा हूँ, सीधा बैठ जाऊँ, थोड़ा सा चल कैसे रहा हूँ, थोड़ा सीधा चलने लग जाऊँ, मैं बात कैसे कर रहा हूँ किसी से। हर चीज के ऊपर आप किसी को बोलते कि अब नजर है, आपका टेस्ट है, तो भले ही जो परीक्षा का इम्तिहान नहीं, मैं तो साधारण जीवन की बात कर रहा हूँ, उसी में टेंशन हो जाता है। लेकिन जीवन के अंदर हमें हमेशा टेस्ट में से गुजरना पड़ता है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी कल बात करी कि टेस्ट से क्यों डरो, आप टेस्ट को एक पत्र लिखो। मैं प्रधानमंत्री जी की बात दोहरा रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने पेपर को एक चिट्ठी लिखो, डियर पेपर या डियर इम्तिहान, मैं तुमसे क्यों डरूं, मैंने तो इतनी तैयारी करी है, मैंने तो इतने महीने तक किताबें पढ़ी हैं, मैंने तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के चर्चा करी है, मैंने अपनी टीचर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करा है, मैंने 4-5 बार तो जो एग्जाम्पल पेपर होता है उसको भी करा है। तो मैं किस लिए तुमसे डरूं, तुम मुझसे डरो कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे होने वाला है, आओ मैदान में आओ, फिर देखते हैं कौन किसको बचाता है। इतनी शानदार बात, बहुत शानदार बात। और जब मैंने ये बात सुनी, मैंने अपनी पत्नी को बोला, मैंने कहा क्या कमाल की बात करी है। देखिए जब मैं खेलों में था, यहाँ पे बहुत से खिलाड़ी बैठे हैं, वो सब इस बात को जानते हैं, आप शामिल हैं उसके अंदर। जब मैं खेलों में था तो एक समय ऐसा आया और मेरे को किसी गुरु ने बताया कि ऐसा करो, तो मैंने वैसा करने शुरू करा। रात को सोने से पहले जो पूरे विश्व का ग्लोब होता है, उस ग्लोब को मैं हाथ में लेता था और उस ग्लोब को मैं धीरे धीरे घुमाता था और देखता था किस देश का खिलाड़ी मुझसे बेहतर है। ये देश नहीं, ये देश का इसके साथ तो खेला हो, ये देश नहीं। ऐसे करते करते पूरा ग्लोब घूम जाता था। अपने मन में ये हिम्मत आती थी, कौन सा खिलाड़ी है कौन से देश के अंदर जो हमसे मुकाबला कर सकता है, हम किसी से कम नहीं है। वही बात प्रधानमंत्री ने यहाँ बोला। ये बात आप तभी कर सकते हो जब आपने तैयारी करी हो। एक सेना की कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जब आप शांति काल में पसीना बहाते हैं ना, तो युद्ध काल के अंदर आपका खून नहीं रहता, आपके दुश्मन का खून रहता है। ये तो आप जब समय है आपके पास, उस समय में अगर आपने तैयारी करी हो तो मन में विश्वास हो जाता है। और आप तो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ माता पिता बैठे हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। ये जीवन, ये समय सबसे बढ़िया समय है। इस समय में रोजगार वगैरह की कोई चिंता नहीं है। अच्छा खाओ, अच्छा खेलो, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो, कोई टेंशन नहीं है। उसका बिल कौन भरेगा, माता पिता भरेंगे, उनको भरने दोगे। लेकिन ये समय है आपकी तैयारी का, उस तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जब इस तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टाफ है, प्रिंसिपल, आप गुरु हैं। आपका जो
जो क्षेत्र है वो आपके सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूं, क्योंकि शायद मैं खिलाड़ी रहा हूं, हमेशा इस बात को मानता हूं कि सबसे बढ़िया टीचर पूरे स्कूल में कौन होता है? पीटी टीचर, सुभाष जी। सबसे बढ़िया टीचर होता है पीटी टीचर। क्यों होता है वो पीटी टीचर सबसे बढ़िया? वो हर विषय के अंदर अपना ज्ञान देता है। जब किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है ना, तो वो और कोई शायद सुने ना सुने, लेकिन पीटी टीचर जरूर सुन लेते हैं। वो पीटी टीचर बताते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मैथ्स टीचर से भी बात कर लूंगा, या मैं वो भी कर लूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर लूंगा। ऑल इन वन होते हैं। असली जीवन का रास्ते दिखाने वाला ही तो टीचर होता है। कोई बोले मैं तो मैथ्स तक ही पढ़ाऊंगा, बस मैथ्स का सवाल के अलावा मत पूछना, वो क्या टीचर है? टीचर वो होता है जो जीवन की शिक्षा दे। उस जीवन की शिक्षा में सब्जेक्ट भी शामिल है, मैं मानता हूँ। तो आप सबको आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर मंच पे आया हूँ, एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन में स्पोर्ट्स भी शामिल है। मैं इस बात को भी मानता हूँ, और अभी रितिका जी ने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि कितना मुश्किल था बच्चियों को स्कूल तक लाना। इस पूरे क्षेत्र के अंदर, बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर माता पिता को समझाना और बच्चियों को स्कूल तक लेकर आना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने मुझे बताया और मेरा दिल दहल गया ये सुनकर कि अभी भी ऐसा होता है। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये घर की आधी ताकत हैं। और आप सब जो महिलाएं हैं, आप याद करिए, जब आपको अपने जीवन में समय मिलना चाहिए था, आपको आशा भी थी कि शायद कोई मुझे मौका दे दे, और उस समय मौका मिल गया होता तो आप जहां आज है उससे कहीं और ज्यादा आगे होती, लेकिन मौका नहीं मिला। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को मौका दीजिए, और खास तौर से बच्चियों को, बेटियों को मौका दीजिए और खेलने का मौका दीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा मंच पर आते ही कॉन्फिडेंस। अब ये वर्दी पहन के खड़ी हुई है एनसीसी वाली लड़कियां, ये वर्दी पहनते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। किस तरह से चलती हुई आ रही थी, अपने गेस्ट को लेकर आती आ रही थी, ये सभी सामने खड़ी हुई है। देखिए जरा एक बार इनको खड़े किस तरह से चुस्त खड़ी हुई है, चीते की तरह खड़ी हुई है। ये फर्क होता है, ये इनका कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आएगा। घर के अंदर बचा के रखोगे तो बच्ची आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसकी मानसिक प्रगति नहीं हो पाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। चुनौतियों का सामना करने दीजिए, आगे जाने दीजिए, मुश्किलों का सामना करने दीजिए, समाधान निकालेंगे। सिर्फ मर्दों के पास थोड़ी ना ये ताकत समाधान निकालने, इनको मौका तो दीजिए, फिर ये दिखाएंगे। यार देखिए खेलों में हो, अंतरिक्ष में हो, हर जगह लड़कियां पहुंच गई हैं, तो कहां नहीं पहुंची। तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक ऐसा माहौल बनाइए इस पूरे क्षेत्र के अंदर कि हमारी बेटियां जरूर खेले भी और पढ़े भी और उसके साथ खेले भी। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो मित्रगण यहाँ मौजूद हैं उनको धन्यवाद, मेरे पार्टी के कुछ सदस्य कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उनको धन्यवाद, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बार स्टेज पे नमस्ते है मूडिया राम सर, इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें सर से। थैंक यू सर। और एक निवेदन, हमारे स्काउट गाइड के बच्चियां भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं एक परिंदा बांधने के लिए। आप जैसे ही विद्यालय से प्रस्थान करेंगे तो संस्था के फाउंडर चेयरमैन श्रीमान अनूप शेखावत सर से और डायरेक्टर श्रीमान विजय सिंह जी से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अतिथि
महोदय से निवेदन, स्काउट गाइड के बच्चे परिंदे को लेकर के आपकी प्रतीक्षा में हैं परिंदा बांधने के लिए। गाइड कैप्टन सुशीला पंगाल एवं सोनू कंवर मैम के नेतृत्व में स्काउट गाइड के बच्चे पंक्तियां कहना चाहूंगा। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आए।